Hello everyone, very good morning to all of you. Uh, More time I am in front of you with beautiful poem number 3. Previous video में poem number 2 जो हमने elementary school में श्रम किया था. अब keeping quiet नाम का जो poem आपको beautiful. Heading पर से लगता है कि poet is asking all of us to be quiet, silent. He wants silence for him. Now, what exactly does the word silence mean? What kind of silence is the poet talking about? बहुत ही डीप मैसेज वाली पोएम है. धीरे धीरे समझेंगे. अच्छी पोएम है, इजी गोइंग है. Hopefully you will understand it. He says, now we will count to 12 and we will all keep still. में पोएट कहते हैं कि वो 12 तक गिनेंगे और 12 तक गिनने के बाद सब शांत, साइलेंस. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. चलो आज मैं 12 गिनता हूँ और कोई कुछ बोलेगा. There won't be any language spoken. It means there won't be any language barriers. It's like this animals, they don't have the language, still they understand each other, live in harmony. In the same way, language should not be a barrier in loving, respecting, in understanding other people. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. It simply means poet wants no activity on the surface. कोई एक्टिविटी कुछ नहीं करनी है, शांत रहना है, कुछ बोलना. It would be an exotic, exciting and unusual moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strange. पूरी दुनिया एक हो जाएगी जब पूरी दुनिया शांत हो जाएगी. There would not be any traffic. There would not be a heavy rush of vehicles reaching from one place to another. There would not be the sounds produced by small and big machines in the factory. Everything would be calm. सब शांत. Fishermen in the cold sea would not harm whales. फिशिंग के लिए जाते हैं लोग, आज वो भी शांत रहेंगे. वो किसी whales को, किसी भी fish को आज वो harm नहीं करेंगे. In other words, the poet says that we should think and decide not to harm any form of nature. वो बहुत ब्रॉड सेंस में कहते हैं. इट्स नॉट ओनली फॉर हंटिंग फिश, किलिंग फिश. इट्स फॉर लेट अस देयर बी हार्मनी, लेट अस देयर बी कोऑर्डिनेशन, लेट अस देयर बी द परफेक्ट इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt, जो नमक के ऐसे एरिया में काम करते, would look at his hurt hands. कि नमक में काम करते हैं तो उनके हाथ खराब हो जाते हैं. तो आज फिशरमैन एक तरफ हंटिंग छोड़ देंगे, एनिमल्स को सेफ रखेंगे, एनवायरनमेंट को सेफ रखेंगे. दूसरी तरफ जो लोग जो कॉन्स्टेंटली काम करते हैं फिश सोल्ट के फील्ड में जो काम करते हैं, और हम सब वी आर टायर्ड सो मच, तो आज हम भी कुछ ना करके अपने आप को फिजिकली और मेंटली रिलैक्स रखें. दैट इज़ वेरी. तो इनएक्टिविटी का पोएट का मीनिंग ये है कि आज हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, आज कोई तरह का बैरियर इसके बीच में नहीं आएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं. Those who prepare green walls, it means those who kill animals, those who destroy forest,
Those who do war with gas, war with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes. जो लोग युद्ध में इन्वॉल्व है, those who are thirsty of each other's blood, आज वो लोग भी तय कर ले कि हम युद्ध नहीं करेंगे. Your clothes are stained by blood. आज वो clothes निकाल के you put on the good clothes. Walk about with their brothers. उन लोगों को आज क्या करना चाहिए? क्योंकि जिसको वो मार रहे हैं और जिसके साथ रहकर वो सामने वाले को, वो सब भाई हैं. We are all brothers. समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो पॉइंट समझना है, फ्रेटर्निटी वाला समझना है. In the shed doing nothing. आज कुछ मत करो, फिर wear good clothes, stop wars और be with all. Poet message. What I want should not be confused with total inactivity. Poet कहते हैं कि मेरा कहने का मीनिंग, जब मैं बोलता हूँ, पोएट कहते हैं कि आज कोई कुछ नहीं करेगा, इट डज नॉट मीन कि एंड ऑफ और फुल स्टॉप टू ऑल एक्टिविटी. नो, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट. लाइफ तो जैसी है ऐसी जीनी ही हमें. क्यों? लाइफ किसी एक्चुअली लाइफ का मीनिंग क्या है, यानी गॉड ने क्यों, पर्पस क्या हमारा होना चाहिए. आवर पर्पस शुड बी टू लिव a peaceful, satisfied, contented, happy life. ऐसी लाइफ हमें जीनी चाहिए. It means when we are doing work all the time, we are not actually serving the purpose of God for giving us life. Animals क्या करते हैं दोस्तों? खाना थोड़ा ढूंढ लिया, खा लिया, पेट खा लिए तभी भागा. हम ऐसे लोग हैं, पेट भरा है फिर भी सब भागे, तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, शांति नहीं है. पोएट वो कहते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी वो जो डेथ के बाद शांति आती है, वो पोएट बात नहीं कर रहे. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड. सिंगल माइंडेड का यहाँ मीनिंग समझना है सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश. हम ऐसे लोग मेरा मेरा कर लूँगा, तुम्हारा जो हो वो होगा. हमें ऐसे नहीं होना चाहिए. अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग. हम इतने फोकस्ड होकर बस भाग ही रहे. एक फैक्ट्री की दूसरी, एक क्लास खोला दूसरा, एक स्कूल बनाई दूसरा. इसके लिए आप कितना भी कमा लो ना भाई, हम कितना भी कमा लो, 1 kg फूड भी हम समा नहीं सकते हमारे, वो हमारी लिमिट. कोई कहता है मेरा तो अहमदाबाद में भी 2 हमारे फ्लैट्स है, 2 फ्लैट्स हमारे बड़ौदा में. कब रहने जाओगे भाई? वो स्टोरी बहुत अच्छी. हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड. एक बंदे को, वो बहुत ग्रीडी था, एक बंदे ने कहा कि इस गांव में आप जितना दौड़ो, जितना एरिया कवर करो, वो तुम्हारी जमीन. इतना लालची था, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ा. शर्त ये थी कि सनसेट होने के टाइम में रुक जाए. तो सनसेट होने वाला था, इतना भागा, बहुत कवर कर ली. सनसेट होने ही वाला था, उसको लगा कि अब बस 100 मीटर ज़मीन बाकी है, उसके बाद पूरा गांव मेरा हो जाएगा. उतना कवर करने के चक्कर में he fell down, he died, lost his life and he was buried in a grave that was not more than 5 feet 4 inch. It simply means, the question is, how much land does a man need? Thoughtful, समझ रहे. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, हम भागते रहते, selfish हो गए ना, self-centered, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. A huge silence would interrupt the sadness of not understanding. It simply means we are so busy in our life that we don't have time to think about us, we don't have time to understand us, we don't have time to introspect with us.
खुद से तो बात ही नहीं कर रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी हालत के भाग रहे। तो पोएट कहते हैं कि अगर थोड़ी साइलेंस रखो थोड़े टाइम के लिए, यू वुड गेट टाइम टू बी फ्री फ्रॉम द सैडनेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। है ना, हमारे लिए टाइम ही नहीं है, टाइम मिलेगा तो वो टाइम निकालो। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, हम ऐसा करके भाग करके हम जो हमारे भाग रहे हैं, मौत से भाग रहे हैं, काम करना मनी के पीछे भाग रहे हैं, इतना पैसा कमा लो कि इतना हेल्दी हो जाओ, बीमार हो तो पैसे बहुत होने चाहिए। भाई जितना लिखा है 1 मिनट ना ज़्यादा ना कम, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो सिर्फ अच्छी लाइफ में क्वालिटी होनी चाहिए। हैविंग अ बंगलो इज़ नॉट क्वालिटी लाइफ, having a peaceful sleep is quality life. Having no need to take a sleeping pill is quality. Having no tension of repaying somebody from whom you have taken something, quality. ये life है। Perhaps the earth can teach us that when everything seems dead and later proves to be alive. ये एक सीड के रेफरेंस में दिया। सीड जब जमीन में डालते हैं तो वो डेड ही होता है, वो जिंदा थोड़ी होता है, लेकिन उसमें से ही कुछ नया जिंदा निकलता है। नीम का सीड डाला है तो बड़ा पेड़ बन जाएगा, और कोई सीड्स डालेंगे तो अकॉर्डिंगली क्रॉप ग्रो हो जाएगा। तो नेचर का तो ये तरीका है कि समथिंग दैट सीम्स टू बी डेड, समथिंग लिविंग कम्स आउट। तो हम जब साइलेंट हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वी आर डेड, we are trying to bring out the best version of ourselves when we are silent, because when we are silent we get time to talk with ourselves. Vivekananda ji कहते थे ना, if you don't talk with yourself once in a day, you would miss the chance to talk with the best person ever in the world. तो वो हम ही, ठीक है, खुद से बात करो। Now I will count up to 12 and you keep quiet. कहते हैं आप मुझे जाना है, शांत रहने की कोशिश करो, हारमोनियस लाइफ जियो, पीसफुल लाइफ जियो, कोऑर्डिनेटेड लाइफ जियो विद एवरीबॉडी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ हम एक नहीं हैं, बहुत सारे और भी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।